ایسے گنڈوں سے ان زندوں کو بہتر سمجھتے ہیں جو سمندر کی تہ میں رہ کر علی کا ذکر کرتے ہیں، جو ہوا کے دوست میں علی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذرات جو علی کا ذکر کرتے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں، تم سے زیادہ اچھے ہیں، تم سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مدرسہ اہل سنت رابعہ بصریہ، یہ جو سامنے بچیاں تشریف فرما ہے دیکھ رہے ہیں اپنے سروں سے سفید مقنے باندھے ہوئے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ یہ کون ہے؟ انہیں کنیز بنایا جا رہا ہے۔ پتہ ہے کس کی کنیز؟ اس کی کنیز بنایا جا رہا ہے جو میدان محشر میں جب آئے گی نا تو پکارنے والا پکار کے کہے گا فنادى مناد من وراء الحجاب، تو پردے کے پیچھے سے پکارنے والا پکار کے کہے گا یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ آواز لگانے والا آواز لگائے گا فنادى مناد من وراء الحجاب، ایک ندا کرنے والا پردے کے پیچھے سے ندا کرے گا اے اہل محشر نگاہیں جھکاؤ، گردن جھکاؤ، اس لیے کہ میرے حبیب کی شہزادی گزر رہی ہے۔ میں سوال کرتا نظر آؤں گا اے ندا کرنے والے، اے فرشتوں، اے ملائک، اے قدسیان محشر، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ نگاہیں جھکانی تو کام نہیں بنے گا، گردن بھی جھکانا پڑے گا۔ آخر کیوں؟ نگاہیں جھک گئی تو بات تو بن گئی نا، گردن جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ شارح حدیث امام طبرانی فرماتے ہیں نگاہیں اس لیے جھکانے کو کہا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے حیا کی ملکہ آ رہی ہے، طہارت کی شہزادی آ رہی ہے، محمد عربی کی بیٹی آ رہی ہے، اور گردن اس لیے جھکاؤ تاکہ پتا چلے مخدومہ کائنات آ رہی ہے، جنت کی مالکن آ رہی ہے، حسن و حسین کی ماں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال کے پاس چلیے، علامہ اقبال آپ کو بتاتے نظر آئیں گے۔ وہ کون؟ جو فلسفی ہے، جو پڑھ کر آیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے، جس نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے، جس نے کوٹ پینٹ اور شرٹ اور ٹائی کے سوا کبھی پہنا نہیں ہے۔ اس اقبال سے پوچھو اقبال تو نے تو کبھی علم شاعری پڑھی نہیں، تو نے تو کبھی شاعری کی گردان کی نہیں، اے اقبال تمہیں عروج پتہ نہیں، قافیے پتہ نہیں، آخرکار جب تو قلم اٹھاتا ہے تو شعروں کے دیوان ایسے قائم کرتا ہے کہ اچھے شعراء کی عقل دنگ ہے، تجھے اپنا استاد ماننے پہ تیار ہیں۔ آخر یہ کمال کہاں سے آیا؟ مجھے تو نہیں ملے نا اقبال، ورنہ میں پوچھتا، مگر ایک کلام اقبال کا میں نے بے خودی میں جو پڑھا تھا اس سے پتا چلا کہ اقبال کو یہ خیرات در زہرا سے ملی ہے، در فاطمہ کائنات سے ملی ہے، حسنین کی ماں سے ملی ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، قیامت تک ولی وہی ہوگا جسے زہرا اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے دے دے، جسے سیدہ بچوں کا تصدق دے دے، وہ کہیں وقت کا غوث نظر آئے گا، کبھی وقت کا قطب نظر آئے گا، کبھی وقت کا مدار نظر آئے گا، کبھی وقت کا اشرف نظر آئے گا۔ اپنے تیروں میں ولایت ڈھونڈنے والے ولایت بعد میں ڈھونڈنا، تیرے زہرا کی غلامی پہلے ڈھونڈ لینا۔ آیا جب بےایمانیوں کا زمانہ ہے، ہر وہ آدمی اپنے آپ کو ولی شمار کروانا چاہتا ہے جس نے اچھا جبہ پہن لیا، جس نے اچھی دستار باندھ لی، جس نے اچھے جوتے پہن لیے، جس کے 2-4 مرید ہو گئے۔ ولایت ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، ولایت آل محمد کی جوتیوں میں بیٹھنے کا نام ہے، ولایت آل رسول کی جوتیوں میں پناہ لینے کا نام ہے۔ اور اگر کسی بدبخت کو میری بات اچھی نہ لگے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آئے، پوچھو امام اعظم، میں نے دنیا کے مدرسے دیکھے، میں نے ہندوستان کی یونیورسٹی دیکھ لی، ہندوستان کے مدرسے دیکھ لیے، درس حدیث جہاں لگتے ہیں میں نے ان خانقاہوں، میں نے ان مدارس کو دیکھا ہے، میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ عالم سے زیادہ بنا ہو، وہ مفتی سے زیادہ بنا ہو، وہ علامہ سے زیادہ بنا ہو۔ یہاں تو جامعۃ الازہر سے بھی کوئی پڑھ کے آئے، بغداد یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کے آئے، یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی سے کوئی پڑھ کے آئے، پڑھ کے آنے کے بعد ساؤتھ افریقہ سے پڑھ کے چلا آئے، پڑھ کے آنے کے بعد کیا
बनेगा, मौलाना बन जाएगा, अल्लामा बन जाएगा, मुफ्ती बन जाएगा, मुकर्रिर बन जाएगा, मुहद्दिस बन जाएगा, मगर जो मेरे इमाम जाफर सादिक के जूतों में बैठेगा वो अल्लामा नहीं बनेगा, वो इमाम आजम बन जाएगा, वो नोमान इब्न साबित बन जाएगा, वो सिराजुल उम्मा बन जाएगा, वो इमामुल अइम्मा बन जाएगा, वो हनफियत का वो चिराग बनेगा, वो सुबह कायनात तक उसकी रोशनी मिलती रहेगी। मैं पूछूंगा दिल में हाथ रखकर, इमाम आजम ये कमाल तुम्हें कैसे मिला? तो मेरा इमाम मुस्कुरा के कहेगा, जब जाफर सादिक का मदरसा लगता था, दरसगाह लगती थी, तो मैं सबसे पीछे बैठता था जहां जूते उतारे जाते थे। किसी ने तो एक दिन पूछ लिया, ऐ नुअमान, वो जो ताक है, उस ताक में जो चराग है जल्दी से दो ताकि उसमें तेल बढ़ाया जाए। वो बुझ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि ताक कहाँ है, चराग कहाँ है। चराग दीवार में बने हुए ताक पे रखा हुआ है, इतना भी नहीं पता। तो मुस्कुरा के मेरा इमाम कहता है, जिन जूतों में बैठा हूँ उनमें कमाल इतना है, मैं अगल बगल देखने की जुर्रत नहीं कर सकता हूँ। वो मेरा इमाम पुकार के कहे, लौला सनतान लहलकल नुअमान, वो इमाम आज़म जो ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे ज़ैद शहीद की हिमायत में खड़ा हो, तो बुढ़ापे की आलम में 30,000 रुपए दे के कहे, अगर ये बुढ़ापा बीच में मुखिल न होता तो इमाम आज़म तलवार लेके ज़ैद शहीद के गुलामी में नजर आता, मैदान जंग में नजर आता। मैं ये बात इसलिए दे रहा हूं ताकि इस जंग में मेरी हिस्सेदारी हो। हुकूमत से कारिंदे आ गए, हुकूमत के सफीर आ गए, इमाम आज़म को पकड़ के कहा कि तुमने जो हिमायत का ऐलान किया है ज़ैद शहीद का, उनके खिलाफ फतवा दो। तो मुस्कुरा के कहते हैं, ये कलम जो अली से मिला है, ये इल्म जो अली से मिला है, वो अली के बेटों के खिलाफ नहीं चल सकता, वो अली के बेटों के खिलाफ नहीं जा सकता। इमाम आज़म ने जेल खाने में शहादत इख्तियार कर ली, मगर अली के बेटों का साथ नहीं छोड़ा, रसूल की औलाद का साथ नहीं छोड़ा। अभी 2 शाबान को इमाम आज़म अबू हनीफा का यौम शहादत गया ना, तो आलिम साहब ये कह के गुजर गए, उनसे सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा उर्स नहीं है। इस इमाम को बताओ तो इमाम आज़म ने अहले बैत की मोहब्बत में जान गंवाई है, अहले बैत की मोहब्बत में जहर खाया है, अहले बैत की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गंवाई है। गंवाई नहीं है, इस शहादत में इमाम आज़म को जमीन की पस्तियों से निकालकर और ये सुरैया पे बुलंद कर दिया है। सुबह कयामत तक जब तक इल्म के गुंबदो मीनार कायम रहेंगे, इमाम आज़म अबू हनीफा का नाम लिया जाता रहेगा। इमाम मालिक की बारगाह में आओ ना, कौन इमाम मालिक? जब मंसूर तवानकी ने कहा एक किताब लिख दो, ऐसी हदीस की किताब जमा करो जिसके जरिए से अवाइली जिंदगी में लोग वजू, नमाज, गुस्ल, फरज़ और निकाह, तलाक के मसाइल हल कर सके, मगर खबरदार इसमें अहले बैत से रिवायत न देना। इमाम मालिक ने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ, और जब किताब लिखी ना तो अहले बैत से दर्जनों रिवायत उसके अंदर भर दी। जब किताब मंसूर तवानकी के पास पहुंची तो जलाल में आ गया, इमाम मालिक के दोनों हाथों पे रस्सियां बांध के ऊंटों में बांध के ऊंटों को दौड़ा दिया गया और दोनों हाथ कंधे से उठाए गए, सर से अमामा उतारा गया, खच्चर पे बिठाया गया और चेहरे पे काली पोती गई और गली कूचों में फिराया गया, गली कूचों में गधे पे फिराया गया। मदीने की सरजमीन पे जब किसी नुक्कड़ और चौराहे पे पहुंचते ना तो खुद इमाम मालिक कहते, लोगों इमाम मालिक की बात कर रहा हूँ, इमाम मालिक खुद कहते, लोगों मुझे पहचाना? कहते नहीं, तो कहते याद कर लो, पहचान लो, मैं वही मालिक इब्न अनस हूँ जिसे तुम अपना इमाम मुहद्दिस जानते हो। ये सदा मुझे हुक्म अहले बैत में मिली है, अहले बैत की मोहब्बत में मिली है, अहले बैत के प्यार में मिली है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मैं तारीख के शवाहिद बयान करना शुरू करूँ ना कि अहले बैत की मोहब्बत में सजाएं कैसे मिलती हैं, अहले बैत की मोहब्बत में इंसान को किस तरीके से खाको खून में गलता किया जाता है, तो एक बाब है तारीफ का,
मगर मुझे यहाँ पे इमाम हुसैन पे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। बस एक वाकया बयान करके मैं अपनी तकरीर को उस तरफ मोड़ दूँ। एक बगदाद की सरजमीन है और उस वक्त बनु अब्बास का बादशाह है, उसके दो बेटे हैं छोटे छोटे। वो चाहता है कि मेरे बच्चों को दीन मिले, मेरे बच्चों को तालीम मिले, मेरे बच्चों को कुछ ऐसी तालीम और तरबियत से नवाजा जाए कि वो आगे चल के बादशाहत के मनसब पे बैठने के काबिल हों। कब बगदाद का जो सबसे बेहतरीन आलिम दीन हो उसको ढूंढा जाए, तब पता लगाया गया इब्न सिक्की नामी आलिम दीन मिला। उसको हायर किया गया, बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, उसकी एक फीस तय की गई, एक कोठी दी गई, चंद उसको जमीन और जायदाद और बागात दिए गए। कहीं तुम्हारे खान पान और तुम्हारे जो है जिंदगी भर के मामलात का जो हमने इंतजाम कर दिया है, कमाई का, रोजी रोटी का। अब तुम कहीं और नहीं जाओगे पढ़ाने, तुम क्या करोगे? अब तुम मेरे बेटों को पढ़ाओगे, अब तुम मेरे बच्चों को पढ़ाओगे, अब तुम मेरे बच्चों के टीचर हो। अब तुम्हारी ड्यूटी यह है कि तुम मेरे बच्चों के उस्ताद हो गए हो। अब शाही उस्ताद हो गए, अब शाहाना ठाट बाट हो गई, अब शाहाना तर्ज जिंदगी हो गई। बच्चों को रोज पढ़ाते हैं, रोज जो है सबक देते हैं। कहते हैं जब साल या 6 माह गुजरा तो एक दिन बादशाह को ख्याल आया, रखा हुआ जो ट्यूटर और टीचर है, चल के उसकी बात पूछा तो जाए ना उससे कि आखिर वो मेरे बच्चों को कैसा पाता है पढ़ने लिखने में। शायद हमारे लोग कभी जाते हो बच्चों के स्कूल में टीचर से ये पूछने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसे है। हमने तो उठा के फेंक दिया स्कूल के अंदर, मदरसे के अंदर, पढ़े न पढ़े अगर ना कोई मसला नहीं है। 15 साल का 14 साल का हो जाएगा तो उसको भेज देंगे कहीं रूम में कपड़ा घड़ी करने के लिए, और वहां से वो 100 रुपया रोज 200 रुपया कमा के लाएगा। अजीजों, तुम्हें पता है तुम्हारी सोच ने आज तुम्हारे इल्मी गिराफ को कहां लाके खड़ा कर दिया है। वो लोग जो कासाए गदाई लिए मुसलमानों के दर पे खड़े रहते थे, आज वो हमारे उस्ताद और टीचर बन गए हैं, आज वो हमारे रहबर और रहनुमा बन गए हैं। जी दुनिया को हमने देखा, हमने ये जो लाइट चल रही है ये दुनिया को हमने दिया है। ये जो स्पीकर से आवाज निकल रही हवा के दोष पे चल रही है ये दुनिया को हमने दिया है। एटम जिसे कहते हैं एटम पावर, परमाणु ताकत दुनिया को हमने बताया है। हमने कुरान पढ़ा था, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हमने बताया है जब जमीन की पावर ऑफ ग्रेविटी को, जब कुव्वते सकल को अल्लाह टेस्ट करता है तो गिरने वाला चने के बराबर दाना भी हो तो इंसान की खोपड़ी को तोड़ता हुआ, हाथी के जिस्मों को चीरता हुआ जमीन में घुस जाता है। ये एटम पावर की इब्तिदा है, ये एटम पावर का नुक्ताए आगाज है जिससे एटम पावर लाया गया। पावर ऑफ मशीनरी पूरी दुनिया के अंदर है। आप शहर में रहने वाले हैं, लोग के शहर में आपको पता है इंजन पावर किसे कहते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों पे लिखा होता 125 सीसी, 150 सीसी, 180 सीसी, 1000 सीसी। सुना है कि नहीं सुना है? ये सीसी क्या है? ये इंजन का कोर पावर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको पता है ये पावर दुनिया को कहां से मिला है? 15वां पारा है, कुरान मुक़द्दस है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये जो रात और रात का सफर परवरदिगार ने बयान किया है, यही वो आयत है जिस आयत से इमाम जाफर सादिक ने अबुल हैसम अंदलुसी को बताया है कि इंजन का पावर भी कोई चीज होती है और मादनियात भी कोई शय होती है। और जो आपने देखे होंगे आपके मालेगांव में शहर के बीचों बीच एक ब्रिज बन रहा है, कभी इस पे गौर किया है? हमें क्या पता, हम तो ब्रिज के नीचे ठेला लगा के खड़े हो गए और दिन भर में 2-4-10 समोसे बेच के और केले वगैरह बेच करके हमने जिंदगी गुजार ली। कभी उसके साइंस को गौर कीजिए और देखिए कि एक पिलर, एक खंबे के ऊपर, एक इमारत के ऊपर इतना बड़ा ब्रिज दोनों तरफ से कायम किया गया है। उस पे गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, हजारों किलो का वजन है मगर वो अपनी जगह से टगमगा नहीं रहा है। क्यों पता है? इसलिए कि कुरान ने कभी इसकी तरफ इशारा किया था, तखलीक की तरफ, खिलकत की तरफ, तसन्नुह की तरफ, बनाने की तरफ, तामीर की तरफ। उन्जुर इलल इब्ल कैफ खुलिकत। लोगों कभी ऊंट को देखो हमने कैसे खल्क किया है, कैसे खल्क किया है। पतली पतली टांगों पे इतना बड़ा जिस्म रखा हुआ है। ये ऊंट के पैरों के नीचे की पकड़ और ऊपर जाके उसकी हड्डियों की साख्त बताती है कि जब कभी साइंस तरक्की करेगा, फलक ठोस इमारत बनाएगा तो उसे यही से आकर के आइडिया मिलेगा। मगर अफसोस अफसोस, ये कौम जिस कौम ने दुनिया को रोशनी दी, दुनिया को उजाला दिया, ये लोग जिस कौम के लोगों ने दुनिया को हवा के दोष
उड़ने का सलीका सिखाया, समंदर में तैरने का सलीका सिखाया। आज आलम यह है खुद जहालत की अमीर गहराइयों में है, जहालत की खाइयों में डूबी हुई है, अंगूठा छाप नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कितना पढ़े हैं 8वीं, कितना पढ़े हैं 10वीं, कितना पढ़े हैं 9वीं। शायद इसमें यह भी एक खराबी हो कि जब भी हमारे उलमा ने इल्म की बात की तो कुरान ही बताया, हदीस ही बताई, कभी ये नहीं बताया कि अंग्रेजी भी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, अलजेब्रा भी पढ़ो, बायोलॉजी भी पढ़ो, कभी ये नहीं बताया कि केमिस्ट्री भी पढ़ो। इसलिए कि शायद वो ये नहीं जानते हैं कि जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है, केमिस्ट्री का माई बाप, वो है जाबिर इब्ने हय्यान, और वो है जो इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठ करके, जो इमाम जाफर सादिक का शागिर्द कहलाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, ये जो इल्म की पूरी कायनात में इसकी आवाज जैसे पहले नाक खानी में थी वैसे बढ़ाइएगा, इसलिए कि ज्यादा करीब नहीं हो सकता इसके में। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा और मेरे जुमलों को ज़हन में रखिएगा। एक एक जुमला लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि तकरीर वाह वाह के साथ हो, तकरीर कभी कभी आह आह के साथ भी होती है। अपने सुनहरे माजी को देखो, अपने पास्ट को देखो, अपने गोल्डन ईरा को देखो, जब मिस्र तुम्हारे कदमों में था, जब ईरान का फलसफा तुम्हारे कदमों में था, जब अफ्रीका का साइंस तुम्हारे कदमों में था, उस वक्त को देखो ना जब हिंद का आयुर्वेद इमाम जाफर सादिक की बारगाह में दुजानू बैठा हुआ कह रहा था पुश्ताजात बनाना हमने जनाब नूह से सीखा है, जनाब इदरीस से। हाँ, जनाब इदरीस हैं जो इल्म के सबसे पहले मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ सारी किताबें खोल के बैठ जाऊँ ना, ये सबसे पहले अलिफ कैसे लिखा गया, बा कैसे लिखा गया, ता कैसे लिखा गया, सा कैसे लिखा गया, जनाब इदरीस ने सबसे पहले कैसे खेती बाड़ी सिखाई, सबसे पहले कैसे कपड़ा सिलना सिखाया, सबसे पहले जनाब इदरीस ने बर्तन बनाना कैसे सिखाए। तो वो पूरी रात बीत जाएगी, सिर्फ ये सिलसिला इल्म का चलता रहेगा, मगर ये सारे इल्म के सिलसिले चलते चलते जिस बारगाह में आके सर्वसजूद हो जाएंगे वो बारगाह मोहम्मद अरबी की बारगाह है। इसलिए तो कुरान कहेगा हबीब, जो आप नहीं जानते थे आपके रब ने आपको वो सारा इल्म अता फरमा दिया। और जब कुरान ये सनद दे देगा, ये बता देगा कि मोहम्मद अरबी सबसे बड़े आलिम हैं, तो रसूल मोहतरम मुस्कुरा के कहेंगे कुरान तूने कह दिया ना मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अब नबी मिंबर पे खड़े होके कहेंगे ऐ लोगों, अल्लाह का कुरान कह रहा है मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ, तो अब मेरा भी कलाम सुन लो। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा। तुम्हारे दरवाजों पे लिखा होना चाहिए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, तुम्हारे घर पर लिखा होना चाहिए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, तुम्हारे बच्चों की कॉपी किताब पर जुमला लिखा होना